السلام علیکم ناظرین، جی کے ویب ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں زبیر قریشی اور آج کے اہم موضوعات ہیں۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کی شدت برقرار، جبکہ آکسیجن کی کمی سے نپٹنے کے لیے جرمنی سے جدید مشینیں پہنچی سری نگر۔ کورونا کرفیو کا 19واں دن، بندشیں لگاتار جاری، لوگ گھروں میں محصور۔ NRHM ملازمین کا سری نگر میں احتجاج، PPE کٹ اور مستقلی کا کیا مطالبہ۔ اور کھنمو آپریشن کے دوران 2 جنگجو جاں بحق، پولیس۔ اور اب موضوعات کی تفصیل، لیکن آغاز کرونا وائرس کی تباہ کاری سے۔ اگر پورے ہندوستان کی بات کریں تو کرونا انفیکشن کی شدید بحران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,81,000 سے زائد نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,78,000 سے زائد افراد اس وائرس کی گرفت سے آزاد ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی دوران 6,91,211 افراد کو کرونا مخالف ٹیکہ بھی لگایا گیا۔ جموں کشمیر کی بات کریں تو بھی 23 سالہ نوجوان سمیت آخری اطلاعات موصول ہونے تک 20 افراد کی اس وائرس کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ اس طرح مجموعی طور پر جموں کشمیر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3,170 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تاہم ناظرین، اب متاثرہ افراد سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی قدرے اضافہ درج ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر میں آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے آکسیجن پلانٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ان پلانٹس میں نصب کی جانے والی جدید مشینوں کو جرمنی سے منگوایا جا رہا ہے۔ آج جرمنی سے مشینوں کی ایک کھیپ سری نگر کے ٹیکنیکل ایئرپورٹ پر پہنچی، جنہیں حاصل کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان اور صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے از خود ایئرپورٹ پہنچے۔ اس موقع پر مشیر موصوف نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان مشینوں کی مدد سے وادی میں آکسیجن کی کمی کو دور کیا جا سکے گا۔ میں اس وقت یہاں پہ ریسیو کرنے آیا ہوں جو ہماری کنسائنمنٹ آکسیجن جنریشن پلانٹس کی جو ہے ابھی ٹائٹ ڈاؤن کیا ہے جرمنی فرینکفرٹ سے سیدھا یہاں پہ یہ ٹائٹ ڈاؤن ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پینڈیمک کے چلتے ہوئے جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ سب سے زیادہ مہتوپورن ہے، اور اسی کو جانتے ہوئے ہم نے ریکوائرمنٹ جو دی تھی آکسیجن جنریشن پلانٹس کے لیے، جو نارملی اس میں 2 یا 2.5 مہینے لگتے اس کو یہاں پہ پہنچنے میں، ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے آنریبل پرائم منسٹر صاحب مودی صاحب کا اور LG صاحب کا اور ساتھ ایئر فورس کا اور کسٹمز کا، جنہوں نے صرف 2 دن کے اندر یہ فرینکفرٹ سے ڈائریکٹلی یہاں پہ ایئر فورس کا اسپیشل کارگو بھیج کے یہ وہاں سے یہ منگوایا ہے اور ابھی یہاں پہ اس کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ریکوائرمنٹ جو تھی ہمارے اس پینڈیمک کے لیے، کیونکہ آپ نے جیسے دیکھا کہ ہر جگہ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ کا جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اور کوئی پتہ نہیں کتنی اور زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس وقت ہمارے پاس 7 پلانٹس جو ہیں ان کی بیک وقت۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کو روکنے کی غرض سے جاری کرونا کرفیو کا آج 19واں دن رہا اور آج بھی حسب سابقہ معمولات زندگی معطل رہے۔ بندشوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی محصور رہنے پر مجبور ہونا پڑا اور عام زندگی مفلوج رہی۔ غورطلب ہے کہ گھروں میں محصور ہونے کی وجہ سے لوگوں بالخصوص غریب طبقہ کی مشکلات میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ اطراف و اکناف میں مزدور طبقہ کی زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ ہزاروں روپے کے کرایوں پر دکانیں لے کر کاروبار کرنے والے بیرونی ریاستوں کے تاجر اور مقامی تاجر بھی نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں۔ کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سری نگر نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں کرونا کرفیو کو مزید 17 تاریخ سے آگے 24 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ کرونا کرفیو میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ صرف بیر منیمم جو پبلک موومنٹ ہے میڈیکل ایمرجنسیز کے ریلیٹڈ ہو اسی کو بس پرمٹ کیا جائے، باقی جو اوورال جنرل پبلک موومنٹ ہے اس کو کم کیا گیا ہے۔ ایک اور جو ریلیکسیشن دی گئی ہے وہ ہے جو پارم پورہ منڈی ہے، کیونکہ ہماری اسٹرابری اور چیری کی جو فصل ہے وہ اب تیار ہوا چاہتی ہے، تو ایسے میں ان کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ ریلیکسیشن دی گئی ہے، جس کے SOP آلریڈی بتا دیے گئے ہیں۔
एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम नंबर ऑफ केसेस के एतबार से देखें तो समझने की बात यह है कि आज हम कहाँ हैं। तो पूरे इस जो मई का महीना है इसमें सबसे ज़्यादा केसेस 4 मई को आए थे जो 1311 केसेस थे। उसके बाद लगातार जो कोरोना कर्फ्यू है उसके जो रिजल्ट्स हैं हमें मौसूल हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, केसेस में गिरावट आ रही है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस की शिद्दत और शरह अमवात में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के सीनियर डॉक्टरों से कहा है कि वो अस्पताल के कोविड वार्डों में अपने दौरों को बढ़ा दें। इस ज़िम्न में फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अटल ढिल्लू ने जीएमसी के प्रिंसिपल को हिदायत दी है कि वो सीनियर अमले की तरफ से कोविड के मरीजों की निगहदाश्त को यकीनी बनाएँ। इसी बीच श्रीनगर ज़िला में गुज़श्ता 5 रोज़ से कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बाइस ये अमल रुक सा गया है। आज छठे रोज़ भी वैक्सीनेशन मराकज़ से लोगों को वापस आना पड़ा। ज़िला के जवाहर नगर में कायम टीकाकारी मरकज़ से वापस लौटने पर लोगों ने बरहमी का इजहार किया। उनके बकौल वो कोरोना कर्फ्यू के दौरान इंतहाई मुश्किल से वैक्सीन के लिए आते हैं, लेकिन वैक्सीन दस्तयाब न होने की वजह से उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि जगह जगह पुलिस एहलकार भी उन्हें हरासा कर रहे हैं कि डेली कौन सी वैक्सीन। मेरा नाम है मोहम्मद शाबान, मैं रोज़ आता जाता हूँ वैक्सीन के लिए। एक वैक्सीन मैंने किया है आज से 1 महीना पहले, 1 महीना 10 दिन हो गया। रोज़ आता हूँ, कभी कहता है आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं, ये नरसों नहीं, ये आ जाओ, सोमवार आओ, मंगलवार आ जाओ। रोज़ आता जाता हूँ और यहाँ पर पुलिस वाले भी आने चलने नहीं देते हैं। घर वाले भी बोलते हैं तुम कितना बेशर्म है, और ये लोग कहते हैं भाई 1200 खर्च करो, अभी एक आदमी आया भाई 1200 रुपये दे दो, प्राइवेट कर लो। अब बताइए आप हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ आते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं है यहाँ पर और वो वैक्सीन वाले भी नहीं है यहाँ पर, बहुत परेशानी में हम लोग हैं। मेरा पहला ही डोज था सर, मैं 2 दिन से जा रहा हूँ JVC, और परसों मैं सैटरडे भी गया उधर। उन्होंने बोला कि आज दिन तक आएगा, मगर फिर कल सुबह मैं गया वहाँ, फिर उन्होंने बोला आया नहीं या आया आता है। वहाँ कोई स्टाफ भी मैंने देखा ही नहीं, बल्कि संडे भी था, मगर उन्होंने बोला था रात को कि कल सुबह आना, आपको दे देंगे। मगर अब मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ एग्रीकल्चर में, मैं आया इधर राजबाग में इसीलिए कि मैं वैक्सीन करूँ। मुझे फर्स्ट डोज है, यहाँ कोई नहीं है, ये कहते हैं हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अब सुनने में आया कि ये कहते हैं प्राइवेट में जाओ 200 रुपये, 300 रुपये, 50 रुपये, ये हमको समझ नहीं आ रहा है ये क्या बात है। हम 10 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज मिलेगी। मेरे पापा हैं, वो बीमार हैं, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। मेरी अम्मा भी बीमार है, 10 दिन हो गए यहाँ पे हम आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं डोज दे रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं अभी आएगी, लेकिन यहाँ पे वैक्सीनेशन हमें नहीं दे रहे हैं। मेरे पापा की एज अब वो 50 है, उनको इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, वो अभी पेशेंट है, उनसे नहीं चला जाता है, बिल्कुल उनको वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तो भी उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका खुनमू में आज सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादम आराई में 2 जंगजू जाँ बहक हुए हैं। यह मुआरका आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस ऑपरेशन के दौरान तरफेन का आमना सामना हुआ। पुलिस के मुताबिक जंगजुओं के छुपने की इतला मौसूल होने पर आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर के खुनमू इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। NRHM के आर्जी मुलाजमीन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया, जिस दौरान उन्होंने PPE किट्स फ्राहम करने का मुतालबा किया। उनके बकौल वो इन हंगामी सूरत हाल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मुस्तकिल करने के लिए भी कोई लाहेअमल तरतीब नहीं दिया जा रहा। एहतजाज कर रहे NRHM मुलाजमीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से उनकी तनख्वाहों में इजाफे और महकमा में मुस्तकिल करने के मुतालबे को दोहराया। बसान कि सन कह मांग करू सा पूर वह सारे जान चलान अमुक यह प्रोटेस्ट यह वन कोर्मुत बटमालू जून सारी करू सा हेल्प अत मज करू सा यह परमानेंट मुलाजिम क्या बार बार वन कि तुम हसा मुलाजिम क्या ग पॉजिटिव पेशेंटस 2 लटि 3 लटि गर कुन विज ऑक्सीमीटर दिन कुन विज बदल चीज सर्वे कर सान फेकन पे रूजित सोरे रिपोर्ट वातान गवर्नमेंटस मगर वातान सनिस पे मगर अस कह इज्जत हमेशा डिग्रेड कर आप लोग मुलाजिम ही नहीं हो
आप जब मुलाजिम नहीं, आप लोगों के लिए सप्लाई ही नहीं है कोई, अगर हमारे लिए सप्लाई नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमें छोड़िए ना ऐसे ही मरने के लिए। हम पॉजिटिव पेशेंट्स के घर जा रहे हैं, ना कोई ग्लव्स होता है, ना पीपीई किट होता है, हमेशा बोला जाता है कि आप लोग मुलाजिम नहीं हो। इसलिए हमारी पहली मांग है कि हमें मुलाजिम का दर्जा दिया जाए, सबसे पहले हमें मुलाजिम का दर्जा दिया जाए। और हमारी तनख्वाह जो है वो 2000 रुपया है, 2000 पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम मास्क की खरीदते हैं ना महीना भर में तो वो भी नहीं आती है, और मरने के लिए हमें भेजा जाता है हर एक जगह। तो हमारा भी इंसाफ कीजिए। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने आज दानिशगाह कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद को इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज सौंपा। प्रोफेसर तलत के पास IUST के वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज अगले अहकामात तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में अहकामात आज उस वक्त सादर किए गए जब IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी ने 5 बरस पर मुश्तमिल अपनी मुद्दत कार मुकम्मल कर ली। ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने आज एक अहम पेशरफ्त के तहत एक ऑनलाइन वेबगाह, पोर्टल और ऑलिव नाम से एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की। मज़कूरा वेबगाह, पोर्टल और ऐप को एमरजेंसी खिदमात हासिल करने के लिए बनाया गया है। ऑलिव ऐप की मदद से ज़िला में कोई भी शख्स किसी भी वक्त एमरजेंसी की सूरत में इंतज़ामिया से फ़ौरन राबिता कर सकता है। ज़िली कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट के मुताबिक इस ऐप की मदद से ज़िला इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई करके जानी व माली नुकसान को बचाने में अपना किरदार अदा करेगी। एक वेब पोर्टल, एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट का लॉन्च किया है जिसमें जो डिज़ास्टर से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें क्विक रेस्पॉन्स करने के लिए एक इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम हमने बनाया है जिसका मैं आपको डिटेल थोड़ा इस तरह बताता हूँ कि कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है, कोई आम शहरी थ्रू हिज मोबाइल फ़ोन और एनी कंप्यूटर जो वेबसाइट है उससे हमें एक रिपोर्ट भेज देगा, तो इमीडिएटली वो उस रिपोर्ट के बुनियाद पे एक SMS जाएगा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, तो ताकि वो डिपार्टमेंट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे। उन डिपार्टमेंट्स में एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे तहसीलदार है, फायर सर्विसेज है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस है, उसमें फ्लड कंट्रोल है और PDD है, पावर डिपार्टमेंट। उनको इमीडिएटली एक SMS जाएगा उनको, और ताकि वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत का पालन करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।